अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों से खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमरीका ने ईरान से तिजारती मुआहदे करने वाले ममालिक को पाबंदियों से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। यानी अगर पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारती मुआहदे करेगा तो पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है। ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं इनकी ज़बान में एक धमकी है। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं, तुम खत्म हो चुके हो। तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम करो, तुम्हारे हौसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। तुम्हारी औकात है नहीं। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल एग्जैक्टली वो है कि चमगादड़ वाली है। काश हम श्रीलंका बन जाए। आज श्रीलंका संभल गया है। अभी मोदी ने पाकिस्तान को जो ताना दिया वो इसी कमजोरी का दिया है कि पाकिस्तान कमजोरी शो करता है। हालांकि एक एटमी पावर है, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के पास मिलिट्री है, बहुत बड़ी फौजी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क इतना कमजोर है। ये ताना दिया नरेंद्र मोदी ने कि हम रशिया से अपनी मर्जी के मुताबिक सौदा नहीं कर सके तेल खरीदने का। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটা বেরিয়ে আসছে এখন কিন্তু পাকিস্তান আর ইরানকে নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা যেমনটা জানেন আজ থেকে কয়েক মাস আগে অর্থাৎ ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তখন কিন্তু উনি ভারতের মতো সস্তা দরে রাশিয়া থেকে তেল নেওয়ার জন্য রাশিয়ায় গিয়েছিল। যাই হোক, উনি যাওয়ার পরে পরিস্থিতি কি হয়েছিল আমেরিকার সাথে, পাকিস্তানের বা অন্য দেশের সাথে, সেটা আপনারা জানেন। কিন্তু রাশিয়া তো ভারতের মতো সস্তা দামে পাকিস্তানকে তেল দেয়নি, পাকিস্তানকে তেল দিয়েছিল সেটা হচ্ছে ভারতেরই তেল ঘুরে পেঁচিয়ে ভারত থেকে যে দামে কিনেছিল বরং ওর প্রফিট ভারতও পেয়েছিল। কিন্তু এখন খবর বেরিয়ে আসছে ইরান কয়েকদিনের জন্য পাকিস্তানে অর্থাৎ 3 দিনের জন্য পাকিস্তানে ভিজিট এসেছে। ইরানের লক্ষ্য এখন একটাই, পাকিস্তানের সাথে যে রিলেশন অর্থাৎ যে ট্রেড রিলেশনটা আছে সেটাকে আরো মজবুত করা, মানে যে ব্যবসাটা হচ্ছে সেটা আরো বাড়িয়ে আরো বিলিয়নটাকে বাড়ানো। বর্তমানে আজকের দিনে হয়তো 2 বিলিয়ন আছে, সেটাকে বাড়িয়ে আরো অনেক করতে চায়। কিন্তু যখনই এই খবরটা আমেরিকার কানে গিয়ে পৌঁছায় তখনই আমেরিকা পাকিস্তানকে ওয়ার্নিং দিয়ে দেয় যে যদি আমেরিকার কথা অমান্য করে পাকিস্তান যদি ইরানের সাথে তেলের পাইপলাইন বিছানোকে নিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করে বা ট্রেডকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে আমেরিকা পাকিস্তানের উপর স্যাংশনকে লাগিয়ে দেবে। আর এই কথাটাকে শুনে পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে পাকিস্তানের আমজনতা ভড়কে যায়। তাদের বক্তব্য যে আমেরিকার হোয়াইট হাউসকে ছাড়ে না, আমেরিকার কোনো কথা আমরা শুনবো না, প্রয়োজন পড়লে আমেরিকার হোয়াইট হাউসকে অ্যাটমি বোম দিয়ে উড়িয়ে দেব। বন্ধুরা, আমি এটা বুঝে পাই না যে আমেরিকা গোটা বিশ্বকে কন্ট্রোল করছে, যে আমেরিকার ভয়ে গোটা বিশ্ব লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে, এখন সেই পাকিস্তান বলছে তাকে উড়িয়ে দেব। তাহলে ভাই আমেরিকার হাতে যেগুলো আছে সেগুলোকে তারা শুধু দেখার জন্য রেখে দিয়েছে? আমি বুঝতে পারি না এদের সবার মধ্যে কমন একটা ডায়লগ যে অ্যাটমি তাগত আমরা অ্যাটমি দিয়ে সবাইকে উড়িয়ে দেব, এমনকি আমেরিকার হোয়াইট হাউসকে পর্যন্ত ছাড়ছে না। তো যাই হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটা আপনারা দেখে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। आज श्रीलंका की हालत हमसे 1000 गुना बेहतर हो चुकी हुई है। उनकी इकॉनमी स्टेबल हो चुकी हुई है, उनके इन्फ्लेशन कम हो चुका है, उनकी मार्केट के अंदर उनकी प्राइसेस के रेट ठीक हो चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक उन्होंने कर लिया क्योंकि उनके अवाम ने कान पकड़ के कहा कि हम तुम्हारे अंदर तुम्हारे महलों में घुस जाएंगे, तुम्हारी जायदादों को पकड़ लेंगे अगर तुमने ठीक काम ना किया। और उसका आप देखिए कि उनकी जो वो फैमिली की चल रही थी, इतना लंबे पन्ना संगा की जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी हुई। ईरान ने अपने हिस्से की जो गैस पाइपलाइन है वो मुकम्मल कर छोड़ी है और मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को जो अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन है उसको मुकम्मल करना था मखसूस मुद्दत में। तो पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम अभी तक नहीं किया। ईरान इसके ऊपर पाकिस्तान से जुर्माना भी आयद कर सकता है, पाकिस्तान से जुर्माना वसूल कर सकता है, लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते उसने ऐसा नहीं किया। ईरानी सदर पाकिस्तान में आए हैं और नवाज शरीफ चीन के दौरे पर चले गए हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जितनी दिखाई दे रही हैं। ईरान का सदर यहाँ आया था, आप सोचें कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये मैं आज पढ़ रहा था कि गजा की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सोचें कि उसने गुफ्तगू किया कि पाकिस्तान के अवाम और ईरान के अवाम के जो है मसले एक तरह के हैं, दिल एक साथ इसलिए धड़कते हैं कि हम गजा में मुसलमानों की मात, यानी इस वक्त हुकूमत और है ईरानी सदर के मुताबिक और अवाम बिल्कुल और है। ये कभी किसी ने आके यहाँ नहीं कहा।
ये कभी किसी ने नहीं कहा कि हमारे अवाम आपकी हुकूमत के खिलाफ है। ये तमाचा मारा है उसने आपके मुंह। आप सोचें कि उसका एक विजिट प्लान था, उसमें एड्रेस करना था पार्लियामेंट को, लेकिन आपने अमेरिका के कहने से पार्लियामेंट को भी एड्रेस नहीं करवाया। ये इस जंग के अंदर आप कहाँ खड़े होंगे आपको कुछ पता नहीं है। आप अमेरिका के साथ होंगे तो क्या ईरान से लड़ेंगे, आप अमेरिका के साथ होंगे तो क्या अफ़गानिस्तान से लड़ेंगे, आप अमेरिका के साथ होंगे तो क्या गज़ा के मुखालिफ खड़े होंगे और इसराइल के हामी होंगे। अब आप सऊदी अरब के पास अपने आप को भेज रहे हैं और सऊदी अरब जो है वो आपकी सबसे अहम तरीन जो आपकी रिसोर्स है रिकॉर्डिक, उसके ऊपर उसकी नज़रें लगी हुई हैं। इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो इस वक्त ईरान को कॉर्नर करने और आइसोलेट करने से है, और पाकिस्तान को ये सैंक्शंस जो हैं उसकी थ्रेट लगा के ये बड़ी सख्ती से वार्न किया गया है कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी भी किस्म की सिग्निफिकेंट बिजनेस डील, खास करके ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे कोई भी पेशरफ्त ना करे। यानी अमेरिका पाकिस्तान को मशवरा दे रहा है कि आपके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं, लिहाजा आप इस बात से आगाह रहें कि पाबंदियां आप पे लग सकती हैं, तो आप ईरान के साथ मुआहदे ना करें। एक्चुअली इसका ये मतलब है। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप ज़हन में रखिए कि मैंने आपसे जिक्र किया गैस पाइपलाइन का। तो अब तक के जितने एलामिये आए हैं, बीबीसी की रिपोर्ट भी इसके ऊपर एक शाया हुई है, उसमें अभी तक गैस पाइपलाइन के ऊपर कोई बातचीत हुई नहीं, खामोशी है बिल्कुल। यानी जो ईरानी सदर की हमारे सदर से, हमारे वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, इस दौरान पाकिस्तान में जो एलामिया जारी किया गया उसमें गैस पाइपलाइन मनसूबे का तज़किरा मौजूद नहीं है। ये बड़ी अजीब एक बात है, क्योंकि तवक्को इसी की जा रही थी और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप भाग रहे हैं, कभी सऊदी अरब भाग रहे हैं, कभी आप चाइना भाग रहे हैं, अभी नवाज शरीफ साहब को साथ लेके भेजा हुआ। वो नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि आप रेगुलर वफद में भेज नहीं सकते। उन्होंने आपको अस्सलाम वालेकुम कह दिया हुआ है, आप ईरान को हरी झंडी दिखा रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं, किस जगह रहना चाहते हैं? काश हम श्रीलंका बन जाते। हुकूमत गिरने के बाद क्या हुआ? नई हुकूमत ने आकर बड़े नारे लगाए कि हम रशिया से तेल लेने जा रहे हैं। कहाँ है तेल? कहाँ है वो मुआहदे? कहाँ पे लिया तेल? तो या तो आप गुलामी करते हैं या आप आज़ादी के साथ फैसले करते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं कर पाता। इस बात का एक और सबूत यह है कि अब तक जब मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त तक अगर ये एलामिया में कहीं पे आ गया गैस पाइपलाइन का मंसूबा, तो उसको खुशामदीद कहा जाएगा। लेकिन अब तक पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो सबसे बड़ा मंसूबा है, जो सबसे अहम पॉइंट है, जो हमें कनेक्ट करता है हमारी सरहद के अलावा, वो हमारी गैस पाइपलाइन है तजारती नुक्ता नज़र से। उसका कहीं तज़किरा भी नहीं है क्योंकि अमेरिका इसके खिलाफ है। नंबर 2, पाकिस्तान रशिया से तेल भी नहीं ले सका। वो किस वजह से? एनर्जी की अपनी तमाम ज़रूरियात पाकिस्तान पूरी कर सकता है इन दो मुल्कों से अगर पाकिस्तान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज तरीके से आगे बढ़ाते हुए इनसे गैस के और तेल के मुआहदे कर ले। लेकिन ये जो गुलामाना सोच वाली हुकूमत है, ये ऐसा कर नहीं पाई। তো যেটা হোক বন্ধুরা, ভিডিওটা যখন এত দূর দেখেছেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক আর একটা কমেন্ট অবশ্যই করুন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করবেন। বন্ধুরা, আমি জানি না আমেরিকা পাকিস্তানের উপর কি স্যাংশন লাগাবে। যদি পাকিস্তান ইরানের সাথে সম্পর্ক ভালো করে বা দুই দেশের মধ্যে যে পাইপলাইনের অর্থাৎ তেল সরবরাহ পাইপলাইনকে নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল সেটার উপর যদি কাজ করে, এর আগেও কিন্তু বলে দিয়েছিল আমরা কিন্তু আপনাদের উপর স্যাংশন লাগাবো, এবারও আবার কড়া ওয়ার্নিং। দেখার বাকি এটাই আমেরিকা পাকিস্তানের উপর কোন স্যাংশন লাগায়, আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এখন শাহবাজ শরীফ বিড়ালের মতো ম্যাও করে তারা কি বলতে চায় আমেরিকাকে, আর কিভাবে বা সবকিছু ম্যানেজ করে। বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে।